तो आपने मतलब प्रो पीयर्स के हायरिंग में कोई स्पेसिफिक चीज़ ध्यान में रखी और मतलब उसके ड्यूरेशन में भी आपको बहुत सारे रिज्यूमे आए होंगे, बहुत सारी एप्लीकेशन आई होंगी। कोई चीज़ लगी कि भाई ये तो मतलब ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए थी, जो हम लोग जिसकी वजह से हायरिंग ना करें? देखो, मैं तो वैसे बहुत जगह बोला भी है, मैं तो 3 चीज़ें देखता हूँ हायरिंग करने के टाइम ना हमेशा, क्योंकि हायरिंग उस लेवल की नहीं हो रही है जो उन 2-3 सालों में हुई। मैं कितना भी कह लूँ, जॉब के साथ डीएसए मैनेज करना होता तो मेनफुल ही है। आप अगर शुरू से अभी शुरू करते तो क्या अच्छा, मंथ स्टैक करते या क्या करते? दिस इज़ मोर देन इनफ। कहीं न कहीं जॉब मुझे लगता है लग जाएगी अगर अच्छे से काम करा है। व्हाट डू यू गाइस यूज़ एट प्रो पीयर्स? प्लेन जेएस लिखते हो आप लोग या यू यूज़ टाइपस्क्रिप्ट? 2017 टू 19 वाले एरा में अपन पहुँच गए हैं विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़। या आपको ऐसा लगता है कि डिफिकल्टी ऑफ इंटरव्यूज़ भी उसी लेवल पे जा चुका है? कुछ लोगों को लगता है कि सुई इंटरव्यूज़ में डीएस से थोड़ा पूछा जाता है, डेवऑप्स में शायद थोड़ा कम पूछा जाता है। दे हैव दिस सॉफ्ट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दैट। आपका क्या पॉइंट है? So guys, before moving forward, there is a very important information that I would like to give you. So recently we wrapped our Elite 1.0 front-end development course, and now we have launched our Elite 2.0 advanced front-end development course. This is a bigger and a better front-end development course that you need. This course doesn't need any particular prerequisite, and we are going to take you from the very beginner level to the advanced level of front-end engineering. We have actually included projects like your own Replit clone, Wix website maker clone, right? Uber clone, and a lot of similar projects. We are going to make your own PubSub library based LLD driven projects, and we are going to make sure that you learn important front end design patterns as well. I'm going to list down all the projects and all the important design patterns here. This is the only course that you need if you are aiming for SD1 or SD2 or SD3 kind of roles, because we are going to take everything to the very advanced level in front end engineering. We are going to learn a lot of optimizations, and we are going to see technologies like Next.js, Redux, Zustand, TypeScript, React, and of course, the latest version of React. This particular course is going to make sure that you have ample amount of projects that you can add in your resume. We are going to make approximately 20 plus projects with different variety of complexities, engineering problems, and of course, there will be a lot of discussion around the core concepts of frontend. So what are you waiting for? Check out the course link in the description below, and you can use the coupon code mentioned in the description section to get maximum discount possible. See you guys in the cohort, and let's get back to the video. Hello everyone, I am Sanket Singh and welcome back to my channel. So after a long time, काफी सारे follow-ups और discussions के बाद we finally have Parik sir with us. So I was planning to have a nice discussion with him for a long period of time. I've known him for quite some time as well. जब मैं college में था, तो I also went up to him for quite some good amount of guidance, and we had a lot of interaction during my college days as well. So first of all, welcome Parik sir to our channel. And how are you? How's everything going on? First of all, let's talk about that. थैंक यू संकेत फॉर इनवाइटिंग फॉर दिस पॉडकास्ट। रियली रियली एक्साइटेड अबाउट द टॉपिक एंड अच्छा लग रहा है मेरे को कि हम लोग यहाँ बात कर पा रहे हैं, बढ़िया है, लोगों को गाइड कर पा रहे हैं एंड या जनरली लोगों को लाइफ में गाइडेंस मिल जाए, कुछ इम्पैक्ट हो जाए तो लाइक मजा आता है। आप बताओ Nice, क्या nice, चल nice. रहा है? तो ओवरऑल काम वाम सब अभी तो बढ़िया? अभी तो सब सही है, अभी तो सब सही है। आई रिसेंटली जॉइन्ड माइक्रोसॉफ्ट, तो वहाँ पे काम वगैरह चल रहा है। बढ़िया। ट्राइंग टू कोलैबोरेट विद अ कपल ऑफ फोक्स एज़ वेल, श्योर। कि भाई मतलब लेट्स ब्रिंग ऑन पीपल हू हैव बीन देयर, मतलब जो काफ़ी टाइम से आर देयर इन द इंडस्ट्री, जिन्होंने थोड़े से अप्स डाउन्स दोनों तरफ देख लिए हैं। श्योर। एंड लेट्स स्प्रेड सम नाइस इन्फॉर्मेशन अराउंड दैट। और आज अपना डिस्कशन भी हम लोग इसी मेन फोकस पे करेंगे। सो सबसे पहले तो मतलब विल बी टॉकिंग अबाउट कि व्हाट्स द जॉब मार्केट सिनेरियो। आप काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करते आ रहे हो फ्रॉम क्वाइट सम टाइम, कि किस तरीके से जॉब मार्केट में चीज़ें चेंज होती जाती हैं, अप्स आ रहे हैं, डाउन्स आ रहे हैं। विल बी टॉकिंग एवरीथिंग अराउंड दैट। तो सबसे पहला सवाल जो है मेरा आपसे, वो ये है कि व्हाट व्हाट डू यू थिंक, आर वी स्टिल इनटू द फेज ऑफ रिसेशन स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू द टेक इंडस्ट्री? क्या अभी भी मतलब सिनेरियो उतना ही खराब चल रहा है जितना 2023 या 2022 एंड में चल रहा था? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? श्योर। सो संकेत, आई विल बी प्रीटी ऑनेस्ट, ये मतलब ये मेरा थॉट प्रोसेस है, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, बट मेरे को ऐसी फीलिंग है जैसे मैं 2017 में पास आउट हुआ था। सो आई वाज फ्रॉम अ गुड कॉलेज डीटीयू, बट आई थिंक मैं एक इंस्टीट्यूट में था जहाँ आईपी के भी बच्चे हैं, थोड़े लोअर कॉलेज के भी बच्चे, जो भी था। सो क्रैकिंग अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा हार्ड था, मतलब इतना आसानी से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी उस टाइम में। वो 2017 से 19 तक का टफ टाइम था, जो अच्छा करता था, थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो निकाल लेता था, बट इट वाज़ अ लिटिल ऑन द डिफिकल्ट साइड, राइट? चाहे वो सर्विस कंपनी में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में शिफ्ट करना हो या फिर इन जनरल अच्छा नॉर्मल कॉलेज से बड़ी कंपनी निकालना हो, वो थोड़ा डिफिकल्ट था। फिर 2019 से 2021 आया, कोविड का टाइम आया, राइट?
आईटी में जॉब की डिमांड बढ़ी, तो उस टाइम पे आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हायरिंग वगैरह हुई, उस टाइम पे काफ़ी मार्केट काफ़ी अच्छी हुई आईटी की। लाइक अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में अपॉर्च्युनिटी जल्दी मिल जाती थी, रिलेटिवली ईज़ी हो गया था, लिंक्डइन पे पिंग आ जाते थे लोगों को। सो मार्केट काफ़ी अच्छी चल रही थी, स्टार्टअप्स में काफ़ी हायरिंग हो रही थी। फिर वो गॉट 2022 इट। के बाद अगेन एक टाइम आया कि कोविड में ओवर हायरिंग हो गई है, तो थोड़ा ले-ऑफ्स का टाइम, थोड़ा-सा अ, टफ टाइम जो था कि हाँ यार, अब इतनी हायरिंग नहीं हो रही है, कम हो गई है हायरिंग, बट अगेन आई थिंक वी आर बैक टू द फेज़ जो 2017 से 19 का था। वैसे ही टाइम हो गया है कि मिलना अपॉर्च्युनिटी मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हायरिंग उस लेवल की नहीं हो रही है जो उन 2-3 सालों में हो रही है। हो रही है अभी भी, राइट? इफ यू विल सी अराउंड, कोई ना कोई मिल जाएगा जो नॉर्मल कॉलेज से, सर्विस कंपनी से है, उसने बढ़िया कंपनी निकाल लिया, बढ़िया स्टार्टअप निकाल लिया। बट अगेन वो जो डिमांड थी वो 2017-19 टाइप वाली आ गई है। आर वी इन रिसेशन? सो मैं उतना नहीं कहूँगा कि उतना हार्ड रिसेशन है। आई थिंक पिछले साल से काफ़ी बेटर हो गया है, क्योंकि अभी आप अपॉर्च्युनिटीज़ देखोगे तो गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप्स आ रही हैं। हम नए-नए स्टार्टअप्स हुँ। आ रहे हैं, जैसे हम प्रोपियर से हायरिंग कर रहे होते हैं, तो चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फटा हुआ है, चल रहा है। बट हाँ, वी आर इंटो द प्री कोविड एरा अगेन, जो कि नॉर्मल है, वही नॉर्मल था, एंड आई थिंक उतना शायद ना हो, बट वी विल बी रिटर्निंग टू द नॉर्मल अगेन। ये मेरी फीलिंग है, गॉट इट, एंड गॉट इट। तो यू कैन मतलब जैसे शेयर। आपने कहा कि 2017 टू 19 वाले एरा में अपन पहुंच गए हैं विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। या आपको ऐसा लगता है कि डिफिकल्टी ऑफ इंटरव्यूज भी उसी लेवल पे जा चुका है? बिकॉज मेरा ओपिनियन तो डेफिनेटली ये है कि 2022 में स्पेसिफिकली जो भी हायरिंग्स हो रही थी, जो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में हुई थी, वो रिलेटिवली थोड़ा इजियर बार पे होती थी। बट व्हाट डू यू थिंक कि मतलब बार अभी भी थोड़ा इजियर ही है या बार भी वैसा पहुंच गया? क्योंकि 2019 के आसपास तो मतलब कॉल आ गई तो भी मतलब पहले ऑनलाइन टेस्ट, फिर ये 5 राउंड, बीच में तो ऐसा हो गया था ऑनलाइन टेस्ट होने भी बंद हो गए थे काफ़ी सारी कंपनीज़ में। सो व्हाट डू यू थिंक कि बार पुराने टाइम पे पहुँच गया है या अभी भी कुछ थोड़ा-सा मतलब राहत है बच्चों को? क्या सीन है? मैं आई थिंक इस पे काफ़ी अगेन एक ऑनेस्ट पॉइंट है। जैसे 2017 से 19 का पॉइंट था ना, तब रिसोर्सेज़ कम थे। जैसे हम जनरली जीएफजी या जो भी पॉपुलर आर्टिकल्स हैं, इन्हीं से पढ़ते थे। बट आज की डेट में आप कोडिंग के रिसोर्सेज़ देखने जाओ, दुनिया भर के यूट्यूब चैनल हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं। लोग पहले ऑफलाइन बहुत पढ़ते थे, थोड़ा ऑनलाइन बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है। तो इसलिए हायरिंग बार तो थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि गॉट इट। लर्निंग एचटीएमएल, सीएसएस उस टाइम इतना आसान नहीं था, मतलब रिलेटिवली अब आसान हो गया बहुत, है ना? चैट जीपीटी भी आ गया, बहुत नई चीज़ें आ गई हैं। तो डिमांड के टर्म्स में जावास्क्रिप्ट थोड़ा अच्छे से आना चाहिए। रिएक्ट का डिमांड बढ़ गई है, जो मैं स्टार्टअप्स में बात कर रहा हूँ। ऐसी जो अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल है, वो थोड़ा ऑनलाइन राउंड डिफिकल्ट करने लगे हैं, क्योंकि यार कॉम्पिटिटिव फार्मिंग हर कोई कर रहा है, थोड़ा चीटिंग का माहौल ज़्यादा बढ़ गया है, तो थोड़ा-सा बार हाई रिस्क करने लगे हैं वो लोग। तो मतलब हायरिंग बार इंक्रीज़ हुआ है डेफिनिटली, बट आई विल से क्योंकि हायरिंग बार इंक्रीज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि रिसोर्सेज़ ज़्यादा हो गए हैं। तो पहले अगर एक्स लोग प्रिपेयर करते थे, अब ऑलमोस्ट उसके 3 एक्स लोग प्रिपेयर करते हैं, तो हाँ, फ़िल्टरिंग तो होगी। बट ठीक है, जो अच्छा होगा वो कहीं न कहीं मुझे लगता है, ऐसी पर्सनल फीलिंग है, निकाल लेगा। क्योंकि कोई ना कोई तो जाएगा ही ना हायरिंग में, तो जो होगा वो निकाल गुड। लेगा। तो बस ये है, मेहनत की डिमांड शायद ज़्यादा बढ़ गई है, व्हिच इज़ ओके यार, ये तो टाइम का बात होती है। पहले रिसोर्सेज़ कम थे, तो थोड़ा-सा वही है, रिसोर्सेज़ कम के हिसाब से पूछा जाता है, अब रिसोर्सेज़ ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से पूछा जाता है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस आई फील। आप अपने थॉट्स यू कैन ऐड। मेक सेंस, मेक सेंस। नहीं, मुझे भी लगता है कि अभी एक तो स्पेसिफिकली जो आपने चीटिंग वाला पॉइंट बोला, आज ही मैं एक कोड फोर्सेस वगैरह पे आर्टिकल वगैरह पढ़ रहा था, कुछ-कुछ हुँ, नया चीज़ें आती रहती हैं कि किसी ने कोई नया तरीका निकाल लिया, किसी ने कोई नया नया तरीका निकाल लिया, एंड इट एक्चुअली मेक सेंस मेरे हिसाब से कि अगर रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है कि अब अच्छा इस तरीके से भी हायरिंग होती है। पहले तो मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी-छोटी जो ऑफ कैंपस हायरिंग थी, लोगों को समझ में नहीं आता था कि मतलब ऑफ कैंपस हायरिंग में मतलब अप्लाई करना कैसे है? किस तरीके से कॉल आएगी, कॉल्स आती ही नहीं थी। अब एटलीस्ट पीपल आर एबल टू गेट टू दैट स्टेज। तो हायरिंग का बार भी पुराने वाले लेवल पे आ जाए तो हुँ, ज़्यादा बढ़िया है। मतलब बिल्कुल, बीच में वो कंपनीज़ भी जो काफ़ी डिफिकल्ट शुरू से पूछती आई हैं, उन्होंने भी अपना मतलब काफ़ी हद तक हायरिंग बार गिरा दिया था, क्योंकि मतलब इन्फ्लक्स भी ज़्यादा चाहिए था। मतलब बिल्कुल। ये चीज़ मैंने नोटिस करी थी कि इन्फ्लक्स भी ज़्यादा है, ऑनलाइन टेस्ट नहीं होते थे। इस बारी जैसे आई गिव इंटरव्यू फॉर माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट के ऑनलाइन टेस्ट में मतलब मुझसे एक सवाल पूछा गया था, जिसमें मतलब वैसे इवेंचुअली क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था वो ईज़ी था कि ट्रीज़ है, ट्रीज़ में से किसी तरह बस कुछ बाइनरी नंबर्स की फॉर्मेशन करनी है। बट अ, ट्री बनाने का जो तरीका था, वो एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से उन्होंने दिया था बिल्कुल, कि 2 एरेज़ गिवन है। एक एरे में ith इंडेक्स पे ये पढ़ा है कि ith नोड का पैरेंट कौन है,
और दूसरी एरे में ith इंडेक्स पे ith नोड की वैल्यू पड़ी है। हाँ, इसका यूज़ करके पहले पूरा ट्री बनाओ। तो वो ट्री बनाने के लिए तुम्हारे थोड़ा ग्राफ वाला बिल्कुल, अप्रोच तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। बस तुमने अगर वो लेफ्ट नोड, राइट नोड बनाया तो ट्री नहीं बनेगी तुमसे। बिल्कुल। और फिर इवेंचुअली तुम्हें क्वेश्चन करना है, जो कि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू में आएगा, क्योंकि मतलब पास्ट 2 ईयर, 3 ईयर ट्रेंड में ऐसे क्वेश्चंस मैंने नहीं देखे थे। बट देन आई हैड टू सॉल्व इट, और ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट भी अगेन रीस्टार्ट हो गया। बाकी कंपनीज में भी मैंने देखा, जैसे मैंने कॉइनबेस की भी एक वीडियो भी डाली थी, उसमें एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो था कि 4 क्वेश्चन आएँगे, चीटिंग रोकने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि चारों में से 3 क्वेश्चन लॉक्ड होते हैं। हाँ, सिर्फ पहला क्वेश्चन ओपन होता है। अगर तुमने पहला क्वेश्चन करा तो दूसरा खुलता है, दूसरा करा ओह! तो तीसरा गुड। खुलता है, और सारे क्वेश्चन एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर तुमने पहला सॉल्व नहीं किया है तो तुम दूसरा कर ही नहीं पाओगे, श्योर, क्योंकि पहले के फंक्शंस दूसरे में यूज़ होंगे। और श्योर। कोई बहुत ज़्यादा ऐसे डीपी, ग्रीडी ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे वो लोग। इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे चीज़ें पूछेंगे कि जैसे अपनी खुद की कैश मैकेनिज़्म बनानी है, तो उसके बहुत सारे 10-12 सिनेरियोज़ हैं, 3-3 सिनेरियो पर क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे, एंड देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो ऐसे वो 4 बंदे जो बैठा के लोग चीज़ें कर लेते हैं, वो रोक लेते हैं हुँ, कॉइनबेस वाले। तो नहीं, नहीं, बढ़िया है, मैंने ये चीज़ नोटिस बढ़िया। करी थी। और इनोवेटिव सॉल्यूशन है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचा हुआ है, सब सोच सकते हैं। मोस्टली राइट, कंपनीज़ अभी पता नहीं इम्प्लीमेंट कर रही, बट मेरे को ये चीज़ काफ़ी आइडिया अच्छा लगा। वाइज़ बढ़िया लगी थी। तो वो सिनेरियो तो है। बट अभी रिसेंटली एक चीज़ और हुई कि बीच में, मतलब लास्ट क्वार्टर में, मतलब लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर में तो काफ़ी हायरिंग थी, और मैंने भी तभी शिफ्ट लिया और मोस्टली इंटरव्यूज़ मैंने तभी दिए। बट अभी जो लास्ट क्वार्टर गया है इस साल का, उसमें थोड़े बहुत अभी दोबारा इंस्टेबिलिटी सी आई। थोड़े बहुत ले-ऑफ्स वगैरह दोबारा हुए। देयर वर अ फ्यू नोन पीपल टू मी हू वर एक्चुअली पार्ट ऑफ अ कपल ऑफ ले-ऑफ्स। और मोस्टली लोगों का फिर एक कॉमन सा ही क्वेश्चन था कि लाइक व्हाट शुड वी डू नाउ? मतलब ठीक है, हो सकता है कंपनी सेवरेंस दे रही है, सेवरेंस नहीं दे रही है, बट दे हैव अ टाइमलाइन कि मतलब 3-4 महीने का ही उनके पास बफर है। श्योर, एंड फिर दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं कि ब्रेक आ जाएगा तो उससे कोई प्रॉब्लम होगी क्या? और इस ब्रेक में कैसे वी शुड अप्रोच? सो व्हाट डू यू थिंक, मतलब कि अगर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन हो गई है, what should they do in the current job market to make sure that they get their next job as soon as possible? What's your take on that? श्योर। सो आई एम अस्यूमिंग यू आर सेइंग कि ले ऑफ हो गया है एंड नाउ हाँ, व्हाट वी शुड या, डू, राइट? देखो, पहली बात तो या, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ले ऑफ रैंडम है, राइट? अब ये मत डाउट करो कि यार तुम स्किलफुल नहीं थे तो शायद ले ऑफ हो गए। बहुत सारे लोग बहुत स्किलफुल हैं, ले ऑफ तब भी हो जाते हैं। लाइक मेरे फ्रेंड हैं, वो ले ऑफ हैं, बट दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। बट क्या होता है ना, कंपनी का एक जगह से रेवेन्यू नहीं आ रहा, उनको वो डिपार्टमेंट हुँ, बंद करना है, तो वो पूरी टीम ले ऑफ कर देते हैं कि हम दूसरी जगह कर लेंगे। कुछ फीडबैक होता है तो लोग इधर-उधर से हायर कर लेते हैं, बट ले ऑफ गया तो पूरी टीम गई। मतलब कि रेवेन्यू नहीं आ रहा तो यार इसको बंद हुँ, करो। एंड हॉनेस्टली इट इज़ हुँ, हैपनिंग, राइट? कि जैसे क्या होता है ना, इस वाले जो फाइनेंशियल ईयर में हुआ, राइट? जुलाई, अगस्त, सितंबर में लोगों को फ्रेश ग्रेजुएट ज़्यादा मिल लेते हैं, वो थोड़े सस्ते होते हैं, तो कंपनी बहुत ज़्यादा बजट वाइज़ लगाती है हिसाब, कि यार कॉलेज ग्रेजुएट्स हो रहे होंगे तो उनको पहले हायर कर लेंगे, तो ऐसे फाइनेंशियल चीज़ें चलती हैं लोग। तो ले ऑफ होंगे, हो सकता है तुम स्किलफुल हो तब भी ले ऑफ हो जाओ, तो उसकी टेंशन मत लो। क्योंकि ले ऑफ हुए हो तो कहीं न कहीं ज़रूर कहीं न कहीं और जॉब ओपनिंग आएगी, लगेगी। अब क्या कर सकते हो? क्या तो यार यही कर सकते हो कि यार आई नो कहना आसान है, बट रोना मत, ठीक है? उससे कुछ नहीं होगा, वो टाइम वेस्ट है। मुझे अगेन मैं कह रहा हूँ कहना आसान है, बट रोने से कुछ नहीं होगा। वन थिंग दैट यू कैन डू इज़, एक तो फ्रेंड से जो भी अपने लिंक विंक बनाओ कि यार जहाँ पर भी ओपनिंग आ रही है उसमें थोड़ा एक्टिव हो जाओ। कि यार जो भी आपके फ्रेंड है, अगर माइक्रोसॉफ्ट में हो तो डिफरेंट कंपनी के लोग, और नहीं है फ्रेंड तो रीच आउट करो कि कौन कहाँ ओपनिंग हो रही है, थोड़े एक्टिव हो जाओ और लिमिट मत करो कि एक ही कंपनी में, अपने टारगेट करो कि मैं 1-2 महीने में अच्छे से ऑफर्स निकाल लूँ। और जो भी उसके लिए करना है, जैसे डीएसए का फ्लो बनाना होता है तो लीड कोड की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। नहीं है तो फिर स्टाटस को क्रैक करना है तो थोड़े प्रोजेक्ट्स और ये भी है, इन सब में थोड़ा स्ट्रांग हो जाओ। ऑनलाइन राउंड देने की तैयारी शुरू कर दो। सो जितना अपने आप को बिज़ी रखोगे, उतना ज़्यादा तुम दूसरी कंपनी क्रैक कर पाओगे, क्योंकि दूसरी कंपनी इंटरव्यू तो लेगी। अब वो इंटरव्यू में क्या होता है ना कि काम करने का मोड अलग है और इंटरव्यू का मोड अलग होता है, आपको पता है, राइट? आपको मोड पता अलग है। होता है, हाँ, तो आपको वो मेक इंटरव्यू सेंस। मोड में आना पड़ेगा, भगवान ने डाला है तो अब डाला है तो करना पड़ेगा। और ठीक है, 1-2 महीने का एफर्ट होता है। घुस जाओ लीड कोड में, घुस जाओ प्रैक्टिस सेक्शन में, मॉक इंटरव्यूज़ देने आए, पता नहीं लोगों ने काफ़ी मॉक इंटरव्यूज़ दिए होंगे तो ज़रूरत नहीं है, बट मॉक इंटरव्यूज़ दे दो। बिज़ी रखो कि आज मैं ये करूँगा, दोस्तों से बात करें कि यार कहीं ओपनिंग आ गई क्या, या लिंक्डइन पे लोगों से बात करें, बस बिज़ी रखो। जितना अपने आप को ऑक्यूपाई रखोगे, मुझे लगता है आसान होती है चीज़ें। अगेन कहना आसान है, बार-बार जितना पुराना सोचोगे तो उतना इफ़ेक्ट होता है। एंड अच्छी कंपनियों में तो सेवरेंस मिल रहा होगा, हो सकता है बहुत सारी कंपनी में सेवरेंस भी ना मिल रहा हो। कुछ नहीं कर सकते, स्किलफुल होगे तो मैं गारंटी लेता हूँ पक्का जॉब लगेगी, किसी भी स्टार्टअप में या किसी भी कंपनी में। बस स्किलफुल होना ज़रूरी है,
तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अमेज़न से हो तो ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह तुम ज़्यादा एम कर सकते हो। तुम स्टार्टअप से हो तो स्टार्टअप्स में ज़्यादा टारगेट करो। जहाँ तुम्हारे लिए एक जॉब निकालना ईज़ी हो वो करो और दिस इज़ अ गुड टाइम शायद। और एक चीज़ मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं ये बहुत फीडबैक लेके बता रहा हूँ, जिसका ले ऑफ हुआ है ना एंड जो मेरा फ्रेंड दूसरी कंपनी में गया है, वो बहुत बेटर फील कर रहा है। क्योंकि उसके पैसे बढ़ गए हैं। सेकंड, अब गॉट क्या है ना, तो अब उसको सिक्योरिटी ज़्यादा मिल गई कि अब दोबारा ले ऑफ नहीं होगा। क्योंकि अब जो हायरिंग हो रही है वो काफ़ी सोच समझ के होती है और यस, पॉइंट इज़ कि वो जो स्ट्रगल जो कर रहा होता है, क्योंकि ले ऑफ वाले को पता होता है यार कभी भी हो सकता है, तो वो आप उस मोड में रहते हो कि यार कभी भी हो सकता है। बट नाउ यू आर इन अ गुड स्टेज कि अब मैं जाऊँगा तो सिक्योर्ड हूँ, मैं बेटर हूँ, मैं थोड़ा स्किलफुल होके आया हूँ, तो यू गो इन अ गुड मोड। जब आप एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाते हो स्पेशली ले ऑफ के बाद, यू फील वेरी, वेरी बेटर। ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त गए हैं, उनके बेटर पैकेजेज़ हुए हैं, बेटर स्किलफुल और बेटर माइंडसेट हो गया उन लोगों का दिमाग वाइज़ कि काफ़ी चिल हो गए हैं। तो मोड है, बट जैसे ही वो स्ट्रगल मोड खत्म होगा, यू विल फील अ लॉट बेटर। दैट्स व्हाट आई वांट। हाँ, मतलब ये एक अच्छा पॉइंट है, मतलब देखने का अच्छा नज़रिया है कि व्हेन वन्स यू इवेंचुअली राइट। सक्सेसफुली गो टू अनदर कंपनी, तो एक तो जो इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम तुम जो चीज़ें पढ़ोगे, लेटेस्ट के हिसाब से, इंटरव्यूज़ के हिसाब से, वो तुम्हारी नॉलेज बढ़ा देगी। क्योंकि एक तो प्रॉब्लम मुझे ये भी लगती है कि कई लोग जो जॉब जॉइन करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। 2 साल, 3 साल जब जॉइन जॉब में हो जाते हैं, दे जस्ट नो व्हाट टू डू इन देयर जॉब। बस, उन्हें बाहर की थोड़ी नॉलेज कम होने लग जाती है। हाँ, अगर उनसे मतलब एकदम से डीएसए से टच छूट जाता है उनका, एक ये भी काफ़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। बट वन्स यू प्रिपेयर एंड देन इवेंचुअली गेट द जॉब, तो थोड़ा-सा दिमाग शांत हो जाता है कि हाँ भाई, मतलब और जैसे आप ये पॉइंट अच्छा था कि अब जो कंपनीज़ हायरिंग कर रही हैं, वो बजट देख के, सोच समझ के और हाँ, बार को सही रख के कर रही हैं। सही बिल्कुल। उन्होंने बार लो नहीं कर रखा है जस्ट टू गेट मोर इन्फ्लक्स। तो एंड ये एंड वाली ए जो प्रॉब्लम है लोगों के। एक चीज़ और है, इस आजकल इस पे हुँ, हुँ, प्रमोशंस के भी चांसेस होते हैं। आप एसडी 1 थे, आपको एसडी 2 के लिए हायर हो जाते हो। हुँ। तो हाँ, और मैं पे बता भी रहा बेटर हो जा रही है हूँ हाँ, तुम्हारी। पे बेटर हो जाते हैं, प्रमोशन हो जाता है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यू फील अ लॉट बेटर और मैं बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग मेरे आस-पास के ऐसे ही गए हैं और वो बहुत बेटर फील कर रहे हैं। तो हो सकता है प्रमोशन के गॉट इट। चांसेस हो जाएँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बेटर काम मिल जाए। क्योंकि जहाँ आप पहले कर रहे थे अगर वहाँ से ले ऑफ हुए तो वो ना काम फिर आखिरी में गड़बड़ी हुआ है। अब आपको बेटर काम गॉट इट। मिलेगा जिसमें एक्चुअली कंपनी ग्रो करना चाहती है, हो सकता है कोई नया काम मिले, तो यू विल गेट अ गुड वर्क, यू विल गेट गुड पे, बेटर होगा चीज़ें। गॉट इट, गॉट इट। बट ये वाली जो काफ़ी लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है, जैसे उन्होंने जॉब, जैसे मैंने अभी बोला, जॉब जॉइन करी है एंड देन दे आर इनटू जॉब 1 एंड अ हाफ ईयर, और अनटिल और अनलेस जॉब थोड़ी मतलब एडटेक वगैरह से रिलेटेड है। जो मेरे को लगता है जो लोग एडटेक वगैरह में थोड़े रिलेटेड होते हैं, उनकी थोड़ी डीएसए, एलएलडी वगैरह के स्किल थोड़े ब्रश्ड अप रहते हैं। बट बाकी किसी भी कंपनी में लोग जाते हैं, सो हुँ, दे लूज़ देयर टच। और इन केस ऐसी सिचुएशन होती है, देन दे आर लाइक कि भाई मैं बिल्कुल ही स्क्रैच से शुरू करना पड़ रहा है मुझे। मतलब मैंने ऐसी भी सिचुएशन देखी, लोग लिंक्ड लिस्ट रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं। मतलब क्योंकि राइट, 3 साल से टच छूट गया है। वो एक सही बात है कि जॉब का बिल्कुल, मोड ही अलग होता है और डीएसए वाला ये लीड कोड पे दोबारा साइन अप करने का मोड ही अलग होता है। तो हाउ कैन समबडी मेक श्योर कि मतलब दे आर लाइक ऑलवेज़ रेडी, इन अ रेडी स्टेट? अब जॉब चल रही है, ले ऑफ होए ना होए, बट शुड वन बी ऑलवेज़ रेडी फॉर दिस सिचुएशन? और मतलब वो कैसे जॉब के साथ ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं? एनीथिंग दैट यू फील शुड बी डन? श्योर, श्योर। देखो, मैं कितना भी कह लूँ, जॉब के साथ डीएसए मैनेज करना होता तो पेनफुल ही है। क्योंकि अब जॉब लग जाती है, आदमी मेंटली लाइक सोचता है यार ठीक है अब देख लेंगे जब आएगी। रिलैक्स हो जाता है। अब वो आ जाती है जब तो उसकी नीड पता लगती है। बट मेरे को ना एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, जैसे मेरे काफ़ी दोस्त हैं उन्होंने भी डीएसए नहीं करा था। बट अगर आपने पहले से थोड़ा ठीक से किया हुआ है ना, तो आपको इतना टाइम नहीं लगता जितना हम सोचते हैं। कि आपको गॉट हाँ, इट। लगता है स्क्रैच से करना पड़ेगा, रिवर्सल लिंक लिस्ट बट जब आप 2-3 लिंक लिस्ट के क्वेश्चन बना लोगे ना, फ्लो में आ जाओगे। क्योंकि आपने अगर बेसिक अच्छे से करा, अगर बेस अच्छा नहीं था ना, तो अब आपको स्क्रैच से करना पड़ेगा, उसमें लगेंगे फिर 2-3 महीने। मतलब और जो थोड़ा-सा फ्लो में रहता है या कुछ बेसिकली बेस जिसका स्ट्रॉन्ग रहा होता है, वो 1-2 महीने मैक्स में आ जाता है उस फ्लो में। और अगेन वो जो टॉपिक सिलेक्शन है, कुछ रहे हैं कि हमने कोई मार्क करे थे क्वेश्चंस, तो ठीक है, नहीं करे थे तो यार आजकल शीट्स आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, उनको तुम रेफर करके उनके क्वेश्चंस करो। लीड कोड पे ही वो खुद से अगर गूगल के बहुत सारे लिस्ट देते हैं, वो अच्छी होती है मतलब दे आर क्यूरेटेड वेल। तो उन्हीं से काफ़ी सारा फ्लो आ जाता है, क्योंकि अब यार 1000 क्वेश्चन तो कर नहीं सकते। तो ऑप्शन यही है, हो गया है, तो बस दिमाग में डालो मैं लीड कोड करूँगा बैठ के अगर डीएसए करना है या सिस्टम डिज़ाइन करना है तो मैं पढ़ूँगा, कोई रिसोर्स जो भी होगा, करना पड़ेगा एंड अकेले तुम नहीं कर रहे हो, दुनिया में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सो थिंक लाइक दैट कि करना पड़ेगा क्योंकि 5 साल से कम एक्सपीरियंस वाले में ना फिर से डीएसए और सिस्टम डिज़ाइन आता ही आता है, तो उससे भाग नहीं सकते हैं। तो मैं तो वैसे ये रिकमेंड करूँगा कि यार पहले से अच्छा करा हुआ है तो 1-2 महीने लगेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। नहीं करा हुआ तो 3 महीने लग सकते हैं, कर लो 3 महीने में हो जाएगा। और
टेंशन मत लो, 3 महीने बाद जो मैंने बोला है ना कि जॉब बढ़िया लगती है, तो तुम उन तीनों के मायने के में नहीं सोचोगे और बेटर हो जाओगे अपस्किल। और इस बारी वो गलती मत करना कि हमने कोई डीएससी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं मार्क करे, क्योंकि हो सकता है फिर से ज़रूरत पड़ जाए, तो वो मार्क ज़रूर कर लेना। गॉट इट। और बस जॉब वालों के लिए एक रिकमेंडेशन है, मुझे पता है जिस दिन जॉब का डे है उस दिन मुश्किल होता है, बट सैटरडे संडे बैठ के एक कॉन्टेस्ट भी दे दोगे ना, तो तुम फ्लो में बने रहते हो। मेरे को लगता है कॉन्टेस्ट इज़ अ वेरी गुड वे फॉर एवरीवन कि बस एक कॉन्टेस्ट दे दो सैटरडे को 3 घंटे का टाइम लगेगा तुम्हारा और फिर बस। 1 घंटे बाद में आप सॉल्व वगैरह का टाइप कर लो, बस, उतना कर तो लो। वो चीज़ मेरे हो को जाती लगता है है। वो मैनेजेबल होता है। आई कैन अंडरस्टैंड डेली नहीं हो पाता, बट मुझे लगता है एक कॉन्टेस्ट अगर हम दे देंगे, चाहे उस दिन मत दो, किसी दिन और आके दे दो, क्योंकि ऐसा थोड़ी दोबारा नहीं दे सकते, कर लो दोबारा। तो कोड फोर्सेस वगैरह गॉट इट। पे बट जो आपने जैसे अभी बोला कि रिसोर्सेज हैं, शीट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो फिर अब तो ये रिसोर्सेज का भी तो अबंडेंस हो गया ना। अब ये भी बहुत सारी हो गई हैं, तो आधा टाइम लोग यही मतलब एक कोई पिक करते हैं, फिर उन्हें पता लगता है अच्छा ये एक और किसी बंदे ने भी शीट डाली हुई थी, फिर वो उसका पिक कर लेते हैं, फिर थर्ड कोई रिसोर्स उन्हें पता लग जाता है। तो इससे ये वाली चीज़ मतलब आपको नहीं लगता थोड़ी अब ये मतलब हुँ, थोड़ी प्रॉब्लम ही क्रिएट करने लग गई है कि मतलब उसमें आई यार बिलीव कि 70-80% इन्फॉर्मेशन सिमिलर हो सकती है, यही बोलने बट वाला स्टिल था इट मैं। क्रिएट्स कन्फ्यूजन, इट क्रिएट्स कन्फ्यूजन। हुँ, देखो मेरे को लगता है ये जो शीट्स हैं ये सब है, देखो बनाई तो सोच समझ के है, तो अगर आप वही जो आपका पॉइंट बोला ना 70-80% सेम है, किसी को भी एक को पकड़ के कर लोगे ना, वो कर लेगा। स्मार्ट बंदा जो होता है ना, उसको पता है यार ये क्वेश्चन्स कर लेता हूँ मैं। अगर मैंने स्टाइवर का करा वो 180 क्वेश्चन्स उसके कर लिए। आदमी क्या सोचता है यार कम वाले क्वेश्चन्स वाली कर लूँ, एक वो ब्लाइंड 75 है वो हाँ, कर लूँ। अबे ब्लाइंड हाँ, 75 ब्लाइंड करोगे तो सेटिंग। मुझे अब बोल देंगे लोग सारी वैरायटी कवर्ड, अच्छी शीट है वो। बट कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो उसमें ना होगा, नहीं होगा। तो अपने हुँ, टाइम के हिसाब से देखो यार, अगर अगर तुम्हारे को पता होता है मेरे को कितना डीएसए आता है, अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग आता है तो तुम्हारे लिए 75 भी बहुत है। अगर तुम्हें पता है यार नहीं करा था अच्छे से तो 180 करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? या फिर वो लीड कोड का जो अच्छे क्वेश्चन्स होते हैं गूगल वाले, उनको करना पड़ेगा वो जो लिस्ट होती है। तो कोई भी स्मार्ट गॉट बंदा इट। होगा वो रिव्यू देख के पकड़ लेगा। मुझे लगता है क्वेश्चन्स वही होते हैं और जो थोड़ा लॉजिकली फ्लो में आ जाता है, उसको तुम कोई भी नया क्वेश्चन दे दोगे ना वो 80-90% टाइम्स कर देगा। क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा क्वेश्चन होगा ही जो नहीं होगा, कितना भी कोई कर ले। गॉट इट, और मेरे को तो लगता है वो गॉट इट। 180-200 क्वेश्चन्स करो, अगर नॉर्मल स्टेज पे हो, पहले उतने तो बहुत करो, मेरे हाँ, मेरा एक वो भी टेक है, पहले उतने तो करो मतलब। बस हाँ, बस करो तो सही। ये तुम इसी में घूमते रहोगे तो हाँ, करोगे कब, राइट? गॉट इट, गॉट इट। अच्छा, अब थोड़ा-सा डिस्कशन को शिफ्ट करते हैं, जैसे यू आर नाउ बिल्डिंग प्रो पियर्स, राइट? एंड यू आर गेटिंग गुड ट्रैक्शन टू इट। और मेरे ख्याल से अगर कोई कॉलेज में है एंड दे वांट टू पेनिट्रेट इन टेक, तो मतलब मेरी एक रिकमेंडेशन उनको ये रहती है कि लाइक जॉइन लाइक अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स। मतलब मैं खुद जब सेकंड ईयर में था, सो आई वाज़ पार्ट ऑफ स्टार्टअप्स लाइक काकचो, फेबल एंड एवरीथिंग, जिसमें मतलब 6 लोगों की एंज टीम है या 5 लोगों की एंज टीम है, 4 लोगों की एंज टीम है। राइट, सो मतलब आप अभी जैसे प्रो पियर्स बिल्ड कर रहे हो, आपने भी अपने स्टार्टअप के लिए हायरिंग करी होगी। सो व्हाट डू यू लुक मतलब एज अ अर्ली स्टेज स्टार्टअप, क्योंकि मतलब कंपनी से कॉल आना उसके एक अलग प्रोसीजर है, टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री, वो अलग एक गेम है, बट स्टार्टअप्स आर स्टिल समथिंग जो मतलब ओपन रहते हैं टू पीपल विद अ गुड टैलेंट पूल ऑल टुगेदर। तो आपने मतलब प्रो पियर्स के हायरिंग में कोई स्पेसिफिक चीज ध्यान में रखी, और मतलब उसके ड्यूरेशन में भी आपको बहुत सारे रिज्यूमे आए होंगे, बहुत सारी एप्लीकेशन आई होंगी, कोई चीज़ लगी कि भाई ये तो मतलब ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए थी, जो हम लोग जिसकी वजह से हायरिंग ना करें फॉर आवर इंटर्न्स और फुल टाइम रोल्स, कुछ उस बारे में आप कुछ डिटेल्स शेयर कर पाओ अगर? श्योर, श्योर, श्योर। नहीं, नहीं, फेयर है, फेयर है। सो बेसिकली देखो मैं तो वैसे बहुत जगह बोला भी है, मैं तो 3 चीज़ें देखता हूँ हायरिंग करने के टाइम ना हमेशा। पहली बात तो वो ऑब्वियसली गूगल फॉर्म भरवाते हैं तो उसमें 1000 प्लस रिस्पॉन्स आ जाते हैं, राइट? तो पहली बात तो मैं स्किल्स तो हर एक से ना डलवा लेता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग ना वहीं जैसे आज की डेट में अगर हमें फुल स्टैक डेवलपर हायर करना है, तो मिनिमम है एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड.जेएस ये तो डला हुआ ही है। क्योंकि कुछ लोग ना क्या हुँ, करते हैं एचटीएमएल सीएसएस आता है, उसमें स्किल के साथ अप्लाई कर देते हैं। तो मैं बता रहा हूँ 1000 में से 700 लोग तो वैसे ही निकल जाते हैं। कि इस बंदे ने खुद ही नहीं या इस बंदी ने खुद ही नहीं लिखा एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के आगे, क्योंकि उनको तो हायर करने का कोई फायदा नहीं है। आज के डेट में फ्रेमवर्क तो चाहिए ही, बैकएंड हो या फ्रंट एंड हो। गॉट इट। तो हाँ, मतलब प्लेन जेएस कौन लिख रहा है? हाँ, कोई नहीं लिख रहा। अब उसमें हमारे लिए क्या होता है, हमारी ना एक ऐप भी है वो रिएक्ट नेटिव पे। तो ओके। पर्सनली मेरे लिए और आसान हो जाता है कि यार अगर किसी ने रिएक्ट, नोड.जेएस या तो नेक्स्ट.जेएस या फिर रिएक्ट नेटिव लिखा हुआ हो, तो मेरे लिए और आसान हो जाता है, हुँ, क्योंकि पर्सनली हम लोग नेक्स्ट.जेएस पे भी काम गॉट इट। करते हैं। तो किसी ने नेक्स्ट.जेएस करा तो मेरे लिए वो आसान है और इट्स नॉट फॉर प्रोपियर्स, इट्स फॉर एवरी स्टार्टअप, क्योंकि नेक्स्ट.जेएस पे शिफ्ट हो रहे हैं लोग। तो किसी हुँ, ने हाँ, नेक्स्ट.जेएस काफ़ी भी डाला ट्रैक्शन है है। तो अब वो 700 में 300 लोग बचे थे, वहाँ पर कुछ 100 लोग रह जाते हैं, है ना? गॉट इट। तो अब 100 लोग रह गए, अब 100 लोगों को असाइनमेंट भेज दो एक, एक टास्क बनाओ अपने प्रोपियर्स पे कुछ ठीक है। टास्क बनाना होता।
तो 100 लोगों को भेजना आसान है, क्योंकि 100 लोगों को तुम गॉट असाइनमेंट का इट। टास्क दोगे, उनसे एक डेडलाइन का इनपुट ले लो कि यार ये कब तक जब ईमेल जाती है तो वो एक ना रिप्लाई कर देते हैं कि 2 दिन में आ जाएगा आपके पास। तो जिसने जो अच्छा, डेडलाइन डेडलाइन बोली है, उस टाइम तक जिसका सबमिशन आ गया, अब वो ओके। नेक्स्ट राउंड में जाएगा। बहुत आसान तो से आप मेरी डेडलाइन उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ, वो उन लोग बताएँगे कि कब तक बिल्कुल, हम कर बिल्कुल, देंगे? बिल्कुल। उनको अच्छा, ईमेल ईमेल चली गई कि ये इंटरेस्टिंग। आपका टास्क है, आपको एक रिप्लाई उसी टाइम करना है कि आप इसको कितने टाइम तक हुँ, कर दोगे। ओके। तब वो 100 में से मैं आपको बता रहा हूँ 8 लोग आते हैं रिप्लाई 8 या 9 क्योंकि अब जो डेड जो टा देखिए क्या है ना डेवलपर का क्या है उसको टास्क दो, डेडलाइन दो, यही काम होता है हर कंपनी में। तो वो जो इस हुँ, पे सीरियस नहीं हो पा रहा, वो यार आगे चल के और गड़बड़ होएगा। तो इसीलिए हमारे लिए मेक्स एक सेंस। अच्छी चीज़ होती है कि डेडलाइन में एटीट्यूड चेक हो जाता है कि हाँ, सिंसियर है टास्क समझ लेता है आपने डॉक्यूमेंट वो पढ़ के। नॉन टेक्निकल पार्ट भी वहीं चेक कर लिया कि नॉन टेक्निकल भी डिसिप्लिन कितना है। और डेवलपर को टास्क सामने रिटर्न हो और वो उसको देख के समझ पा के बना पा रहा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हर एक टास्क उसको समझाना समझ लो ना वो पेनफुल होता है। क्योंकि वो हर एक चीज़ के लिए अगर हुँ, पूछेगा ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो इट शुड बी हाँ, इनफ स्टार्टअप में तो इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास। हाँ, टाइम स्टार्टअप नहीं में इतना रिसोर्स नहीं है और इतना टाइम नहीं होता कि मतलब हम हैंड होल्डिंग करें। बिल्कुल। तो अब 8-9 लोग आते गॉट हैं इट। और बेसिकली उसके बाद फिर उनका इंटरव्यू हो जाता है। उसमें मोस्टली कम्युनिकेशन स्किल और जो उन्होंने टास्क बनाया उस पे डिस्कशन होता है कि एक्चुअली उन्होंने बनाया है या फिर थोड़ा कॉपी वगैरह लग रहा है किसी और की मदद ली है। वो थोड़ा कॉन्फिडेंस चेक हो जाता है और फिर हायर हो जाता है। उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। कभी-कभी किसी का डीएसए लॉजिकल लेवल का चेक कर लेते हैं बट एरे स्ट्रिंग के क्वेश्चन पूछते हैं उससे ज़्यादा नहीं। हम लोग एज़ अ प्रोपियर स्टार्टअप राइट थोड़े बड़े स्टार्टअप होंगे तो वो थोड़ा गॉट इट। और बड़ा तो लेवल रखते हैं। किस टाइप की प्रॉब्लम्स देते हो आप? मतलब जैसे जब मैं इंटरव्यू अर्ली मतलब कॉलेज में देता था, जैसे मैं गोजेक वगैरह के लिए अप्लाई करता था, वो लोग तो एकदम मतलब एक्सपेक्ट करते थे थोड़ा एलएलडी लेवल सॉल्यूशन, मशीन कोडिंग सॉल्यूशन की। पार्किंग लॉट प्रॉब्लम देती थी गोजेक सबको, मतलब आप गोजेक में अप्लाई करो और वो सबको पार्किंग लॉट प्रॉब्लम दे देते थे। राइट, किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुम कोड कर सकते हो। राइट। मतलब मैंने शायद मतलब मैंने मेरे दोस्तों ने बहुत बार अप्लाई किया होगा और कोई सेलेक्ट होता था, कोई रिजेक्ट होता था, बट उस टाइम अगेन वही उतने ज़्यादा एलएलडी वगैरह नहीं आती होती थी, तो समझ में नहीं आता था भाई किस बेसिस पे निकाल दिया या क्या सीन है और कोई सर्वर वगैरह कुछ नहीं लिखना होता था, कुछ ऐसा सीन रहता था। सिमिलर ही ऐसे ग्रोफर्स वगैरह भी था। आप मतलब किस टाइप की मतलब प्रॉब्लम्स एक्सपेक्ट करते हो? कुछ आइडिया मतलब देखो सेम मत बताओ मतलब उससे अगर वैसे तो सिमिलर कुछ जो बताते हम हो आप। टास्क देते हैं, उसी के अराउंड ज़्यादा डिस्कशन हाँ, करते हैं, उसका एक्सटेंशन कर देते हैं, कि जैसे कभी-कभी हम हुँ, हुँ, पूछ लेते हैं कि यार इसमें इतनी कॉल्स आ रही हैं, तो इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो? जैसे हमारे गॉट इट, रोड मैप वाले का ही कुछ टास्क जाता है, क्योंकि वो हमारा ना थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके बना हुआ है टास्क। तो हम उसी को ओके, भेजते हैं क्योंकि रोड मैप में इनफ लर्निंग बंदे को हो जाती है, जो रोड मैप का बैकएंड है और रोड मैप का जो फ्रंट एंड है। तो उसके अराउंड उसकी गॉट इट, ऑप्टिमाइज़ेशन पूछते हैं, यार ये अगर इसमें इम्प्लीमेंट करना हो तो कैसे करोगे? यहीं पर कुछ चैट बॉक्स लाना हो गॉट तो इट। कैसे इम्प्लीमेंट करोगे? तो मतलब प्रॉब्लम उसी से रिलेटेड होती है और बाकी अच्छा, तो आपकी प्रोपियर्स ऐप से रिलेटेड ही होती हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे लिए सर एक्चुअली वो थोड़ा-सा गॉट इट। ज़रूरी है कि वो जेन्युइनली प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है या नहीं। क्योंकि अर्ली स्टेज हाँ, स्टार्टअप्स अपनी में जो साइड से होमवर्क करके आया है, हाँ, थोड़ा एक्सप्लोर अर्ली करके स्टेज आया है। स्टार्टअप्स भी हैं, तो स्टार्टअप से थोड़ा ना एंथू हो वो सामने वाले बंदे का तो और चाहे उसको थोड़ा कम भी आता हो, लेकिन अगर उसका वो है ना, एंथू है, वो प्रोडक्ट में अलाइनमेंट दिखा रहा है, तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा बंदा निकलते हैं इन द लॉन्ग रन एंड मैंने पहले कोडिंगर्स में भी ऐसे देखे हैं, जो लोग थोड़ा-सा प्रोडक्ट के साथ अटैच होते हैं, वो ज़्यादा अच्छा करते हैं इन द लॉन्ग रन एंड वो सीखते भी ज़्यादा हैं, क्योंकि उनका एंथू गॉट इट, बिकॉज़ एक लाइन के बाद बेसिकली लर्निंग सबकी सेम होती है। अब वो एंथू है कि वो कितने टाइम उसका मन है प्रोडक्ट में, क्योंकि वो चीज़ ही रोक सकती है, अब उसको लर्निंग तो आई आती है। गॉट इट, गॉट इट। तो आप ये कह रहे हो कि मतलब मतलब एटलीस्ट आपके पर्सपेक्टिव से कि जो आपका सिमिलर प्रोडक्ट है, उसी प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव में ही आप कुछ कोई टास्क प्रॉब्लम देते हो प्रॉब्लम एंड इफ बिल्कुल। और मतलब क्या एक्सपेक्ट करते हो आप कि बंदा मतलब जो आपने टास्क दिया है पूरा एंड टू एंड इम्प्लीमेंट करे या एक डिसेंट एफर्ट करा है बंदे ने और 80% तक भी लिया 40% 50% भी करा है तो डू यू शॉर्टलिस्ट देम? नहीं, नहीं मतलब फॉर 80% एटलीस्ट एन इंटरव्यू? 80% तो चाहिए होता है और मैं आपको 80% एक्चुअली चाहिए। बताता हूँ जो एक्चुअली कुछ लोग ना उसमें एक्स्ट्रा फीचर ऐड करके लाते हैं, तो उनके और चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओह! हमने देखा है बेसिकली 100% कर दिया है तो वो 120% करके लाए हैं उसको। तो उसमें गॉट एक इट, और फीचर ऐड गॉट कर इट। दिया खुद से। तो बेसिकली दोज़ पीपल एक्चुअली क्रिएटिव हैं। मैं जनरली लोगों को रिकमेंड करता हूँ। कुछ अपने साइड से 1-2 फीचर ऐड कर दोगे ना, तो इट विल अगेन गिव अस अ गुड गुड इंप्रेशन अमंग्स स्पेशली हाँ, ना बट उसके लिए तुम्हें वो टेक स्टैक आना चाहिए। बट मेरे को ये ये लगता है तो ना मतलब पहले बेयर मिनिमम करना ही लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि अगर इन केस वो टेक स्टैक आता नहीं है, जैसे कोई हाँ, मान लो फ्लटर बैकग्राउंड से आता है और आपने मान लो रिएक्ट में टास्क दिया है, तो फिर वो पहले उसी 2 या 3 दिन के टाइमलाइन में रिएक्ट पढ़ेगा, राइट, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेगा। जैसे एक स्टूडेंट था उसको रिएक्ट आती थी और टास्क एक कंपनी ने एंगुलर में दिया था। तो उसने रातों-रात ही एक तो पहले एंगुलर पढ़ी, जो थोड़ी तो है डिफरेंट
रिएक्ट के इकोसिस्टम के मुकाबले, श्योर। और फिर जो बेयर मिनिमम टास्क थे वही करे उसने, ऑल्दो ही गॉट शॉर्टलिस्टेड, बट या मतलब मेक सेंस, अगर तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर बिल्ड करके दे रहे हो तो तुमने सही स्पीड वीड मेंटेन करी है, वेलोसिटी सही है डेव की, और तभी एक्स्ट्रा तुम फीचर बिल्ड कर पा रहे हो, राइट? और सर मेक इसमें सेंस, मेक सेंस। इसमें इसमें एक और चीज़ है, हमने पहले डेडलाइन उसी से मंगवाई है ना, हमने नहीं दी। हाँ, तो हाँ, अब तो आप तुम, कैटर हाँ, कर तुम्हें सकते पता है। हैं। अब हाँ। बाद में वरना बच्चे वो करते हैं कि घर पे ऐसा कुछ हो गया था, 2 ही राइट, दिन थे मेरे राइट, पास, ये कुछ हो गया। राइट, तुम्हें राइट। पता है तुम्हारे 3 नेक्स्ट दिन, 4 नेक्स्ट दिन कहाँ जाने वाले हो, तो तुम ही बता दो हाँ, कि नहीं अगर आप आपको ये एंगुलर मुझे एंगुलर डिफरेंट आती लगता है, है बाकी। रिएक्ट नहीं आती, हुँ, तो यार तुम बोल दो, क्योंकि हम 15 दिन में हायर करते हैं, तो तुम बोल दो या 7 दिन लगेंगे या 8 दिन लगेंगे। अब तुम 30 दिन बोल दोगे तो नहीं होगा ऑब्वियसली हायर, बट हाँ, 7 दिन लगेंगे, 8 दिन, थोड़े ज़्यादा दिन ले लो, हमें कोई इश्यू नहीं होता। क्योंकि हम 15 दिन का टैट रखते हैं कि हायर होने में। गॉट इट। तो मेरे साथ एक इंटरेस्टिंग केस हुआ था। मैं पूछना चाहूँगा कि आप उस इंटरव्यूअर की जगह होते मेरे साथ, तो मुझे हायर करते या नहीं करते? हुँ, सो ग्रोफर्स में मैंने 2019 में अप्लाई किया था, ब्लिंकिट हो गई है। हुँ, तो उन्होंने बैकएंड का एक टास्क भेजा था। 3 या 4 क्वेश्चन थे, मैं कोई भी चूज़ कर सकता था। एक था कि जैसे इंस्टाग्राम जैसी फ़ोटो गैलरी आप बना लो बस, या ब्लॉग ऐप बना सकते हो, ऐसा करके कुछ था। ठीक है? तो बट उसमें रिस्ट्रिक्टेड था कि वो जेंगो में बनानी है। ठीक है? और मुझे जेंगो नहीं आती थी, मतलब मैं जेंगो का डी भी नहीं जानता था कि कैसे चल, मुझे बस इतना पता था कि सिमिलर फ्रेमवर्क है स्प्रिंग और रेल्स वेल्स से, और मेरे को रेल्स आती थी, मतलब मैं रेल्स में मतलब कुछ भी बना देता उस टाइम बढ़िया। पे। चाहे खराब सही, बट वो चलती चीज़, मैं एकदम वर्केबल सॉल्यूशन बना के देता। तो असाइनमेंट मैंने ले लिया था, और 2 दिन का उन्होंने ही टाइमलाइन दिया था, उस टाइम पे ऐसा था उन्होंने टाइमलाइन दिया था, पर मैंने पूरा रेल्स बना के दे दिया था। आप इस सिचुएशन में होते, तो क्या करते? हायर करते, सॉल्यूशन रिव्यू करते या नहीं करते? क्योंकि ग्रोफर्स तब मतलब इतनी बड़ी स्टेज पे नहीं थी कि बट हाँ, मतलब डिसेंट ठीक-ठाक स्टार्टअप था ग्रोफर्स। तो आप क्या करते? मतलब डू यू थिंक कि आई वाज़ वर्थ अ शॉट? क्योंकि जेंगो और रेल्स तो सिमिलर है वैसे, अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो, व्हाट डू यू थिंक? हुँ। सर इसमें बस यही है थोड़ा-सा, शायद आई थिंक अगर मैं बहुत ही अर्ली स्टार्टअप हूँ, तो शायद मैं नहीं करूँगा। अगर मैं हुँ, थोड़ा-सा भी बड़ा हूँ, तो मैं शायद कर दूँगा, क्योंकि अर्ली स्टेज स्टार्टअप में सर एक्चुअली सिखाने का टाइम बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि आप आओगे गॉट जेंगो इट। सीखने में ही आप बेसिकली 15-20 दिन, 25 दिन लगाओगे, बट एक अर्ली स्टार्टअप के लिए ना 15, 20, 25 दिन भी काफ़ी होते हैं। मुझे नहीं पता ग्रोफर्स मेक कौन-सी सेंस। स्टेज पे था, बट ऑनेस्टली मैं हुँ, एकदम से नहीं करता। मुझे आई कुड हैव अ हार्ट, मैं उसको शायद बोलता यार तू 20 दिन और ले ले, बहुत अच्छा-सा है, बट तू इसको इसी में करके दे, या नेक्स्ट टाइम ये सीख कर आ जा तो ये करियो। मैं उसको फीडबैक ज़रूर देता, बट शायद मैं एकदम से हायरिंग नहीं करता ऑनेस्टली। बट गॉट इट, अगर मैं थोड़ा-सा गॉट इट, बड़ा स्टार्टअप हूँ, लाइक जैसे आज के डेट में कोडिंग ज़्यादा है कुछ है, तो मैं शायद थोड़ा-सा टाइम दे देता, कि यार गॉट इट। कर लेते हैं। सो दैट्स हाउ गॉट द इट। थॉट सो गोज़। लाइक मतलब मेरे इंटरव्यूअर ने मतलब वहाँ पे सॉल्यूशन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। आई वाज़ एक्सटेंडेड एन ऑफर, मतलब बाद में बढ़िया। 1-2 राउंड इंटरव्यू के हुए थे। तो मतलब तुषार थे, आप तो अच्छा, श्योर, आपको याद राइट, होंगे राइट, तुषार। तो राइट, उन्होंने मतलब मेरे को बात बताई थी कि मतलब अगर ऐसा कोई सिनेरियो है जब मतलब जैसे रेल्स और जेंगो बहुत सिमिलर है, मतलब देयर इज़ अ राइट, 80% सिमिलैरिटी सिंटैक्टिकली भी, क्योंकि पाइथन रूबी एक जैसी राइट, ऑलमोस्ट एक जैसी दिखती है। तो तुम मतलब कन्विंस कर लो कि भाई मेरे को आप बस वीकेंड तक का टाइम दो। मैं yeah, वीकेंड में जेंगो इतनी सिखाऊँगा कि पहले दिन आके प्रोजेक्ट सेटअप और श्योर, दूसरे दिन पहली पीआर आ जाएगी। श्योर। तो मैंने वो वाला मैकेनिज़्म लगाया, बट आपकी बात भी सही है। ग्रोफर्स मतलब इतना, मतलब आई हाँ, बिलीव दे वर हैविंग एन एज ऑफ 100 ऑड पीपल, आई गेस, तब भी हाँ, 50 ऑड, श्योर, 100 श्योर। ऑड हाँ, पीपल। तो इनफ बड़ा तो है। दे वर एबल टू गेट इट, बट राइट। यू आल्सो हैव अ नाइस पर्सपेक्टिव कि मतलब इफ यू आर वेरी अर्ली हाँ, स्टेज, तो मतलब यू नीड टू मूव वेरी फास्ट। राइट, तो राइट। तब तो टेक स्टैक स्पेसिफिक हो जाना पड़ता है। हाँ, मतलब वही तो डिपेंड फिर करता अगर है ऐसा कि टेक स्टैक हुँ, किसी को 20-25 दिन दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, वही पॉइंट होता है सर। क्योंकि थोड़े से बड़े हो गए ना सर, फिर इम्पोर्टेंट क्या होता है कि टेक में स्ट्रॉन्ग बंदा, मतलब रेदर देन लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग बंदा है। अभी जैसे बंदे आते हैं तो वो कंट्रीब्यूट कर पाएँ। बट हमें पता है फिर ऐसे बंदे लाओ जो लॉन्ग टर्म में सँभाल पाएँ। तो फिर हम टाइम दे देते हैं कि चल यार ये अच्छा बंदा है, ये सँभाल लेगा। सो उस वजह से थोड़ा थॉट प्रोसेस गॉट आता इट। है। तो बट इससे ये भी एक प्रॉब्लम है ना फिर कि हर बंदा सारे टेक स्टैक तो जान नहीं सकता। अभी बीच में कुछ तो बढ़िया बीफ चल रही थी राइट। कि स्प्रिंग बूट पढ़ लो या मर्न स्टैक पढ़ लो। तो अब आपके स्टार्टअप में अप्लाई करना होता तो चलो मर्न स्टैक से काम सही चल जाता। बट मान लो किसी ने स्प्रिंग बूट पढ़ी होती तो प्रॉब्लम होती। तो बच्चे कैसे चूज़ करें कि किस चीज़ में मतलब व्हाट टेक स्टैक शुड बी गुड फॉर देम? जैसे आपने रिएक्ट नेटिव चूज़ करा है अपने ऐप के लिए, बट फ्लटर आल्सो हैव डिसेंट फायर नाउअडेज़ कि मतलब लोग कर ले रहे हैं फ्लटर पे। जैसे आई वाज़ इन गूगल, तो जी पे पूरा फ्लटर पे बना हुआ है। तो मतलब फ्लटर आल्सो हैज़ डिसेंट ट्रैफिक नाउअडेज़। अगर आप फ्लटर की कॉन्फ्रेंस वगैरह देखो तो मतलब वो लोग भी ला रहे हैं क्रेज़ी-क्रेज़ी फीचर्स। तो मतलब स्टूडेंट्स कैसे डिसाइड करें? अब तो मतलब इतना कुछ काफ़ी कुछ आ गया है। रिएक्ट के लिए चलो एक बार को मैं कहूँगा कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस है कि भाई रिएक्ट तो तुम पढ़ ही लो।
बट बाकी चीज़ों में तो अभी भी देयर इज़ स्टिल कन्फ्यूजन कि मतलब क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आप क्या रिकमेंड करते हो? मतलब आप अगर शुरू से अभी शुरू करते तो क्या श्योर, वन स्टैक करते या क्या करते? श्योर। देखो सर, मेरे को लगता है ये मेरा पर्सनल टेक है, अगेन हो सकता है मैं थोड़ा सही हूँ या गलत हूँ, बट हाँ, मैं लिख दूँगा नीचे पर्सनल। इट्स नॉट कि हाँ, यही करना है, बट बेसिकली आई जस्ट फील, देखो मर्न स्टैक थोड़ा-सा स्टार्टर्स में ज़्यादा पॉपुलर होता है। जैसे ही थोड़ी-सी बड़ी कंपनी होती है ना, तो जावा या ये जो है, ये ज़्यादा डिमांड में आ जाते हैं। तो बेसिकली जो स्टार्टअप्स होंगे वो मर्न स्टैक वाले ज़्यादा देखेंगे, जो बड़ी कंपनीज़ होंगी वो थोड़ा जावा वगैरह देखेंगी, या थोड़ी सर्विसेज़ कंपनीज़ होंगी वो जावा वगैरह ज़्यादा देखती हैं। तो थोड़ा-सा तो इनिशियल फ़िल्टर यहाँ हो जाता है ना? और मुझे लगता है पर्सनली कि अगर आपको मर्न स्टैक एक बारी आ गया है, तो एट लीस्ट आपको फ्रंट एंड, बैक एंड के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स होंगे ना, वो आप कर लोगे, है ना? जावा में क्या है, अगेन बैकएंड तो चलो ठीक है जावा में, बट फ्रंट एंड तो कहीं न कहीं करना ही पड़ेगा ना, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट कहीं न कहीं तो हाँ, आएगी। तो जेएस तो पढ़नी है तुम्हें। हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, एज़ अ फ्रेशर आप मर्न स्टैक फटाफट से खत्म करो, क्योंकि जल्दी भी हो जाता है मर्न स्टैक। नोड.जेएस भी जावास्क्रिप्ट में है, रिएक्ट भी जावास्क्रिप्ट में है, अगर आपको कुछ नहीं आता तो। तो फटाफट से मर्न स्टैक खत्म करो, और थोड़ा बहुत अगर जावा का आइडिया लेना है तो अपने बैकएंड को ट्राई कर लो कि 20-25 दिन जावा करके आप कर लोगे। बिल्कुल ही जावा नहीं आती तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट मुझे लगता है जावा में बैकएंड शिफ्ट करना इतना मुश्किल नहीं है। ये मेरी पर्सनल टेक है कि अगर आपके टाइम हो तो। वरना तो सिंपल फिल्टर है कि मर्न स्टैक फॉर स्टार्टअप्स, बड़ी कंपनीज के लिए जावा एज़ अ बैकएंड। अब ये सर, ये एंगुलर, फ्लटर, अब ये सर, ये इसका ना एंड नहीं है। क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लो, कहीं न कहीं तो फ्लटर जॉब्स आएँगी, कहीं न कहीं तो रिएक्ट जॉब्स आएँगी। अब यार तुमने अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, तुमने थोड़ा रिप्रेजेंटेबल बनाया है, तो मैं बता रहा हूँ, मानसेक वाली जॉब्स कहीं न कहीं निकालोगे। अल्टीमेटली वो लोग प्रोजेक्ट्स, आपके असाइनमेंट के टास्क, आपके क्या क्योंकि बैकएंड इंजीनियर वो अच्छा है जिसको थोड़ी सर्वर की नॉलेज है, कैशिंग वगैरह आती है, वो इन चीज़ों के अराउंड जज करेंगे। कैशिंग जावा में भी है, नोड.जेएस में भी है, बट कैशिंग करना आना चाहिए, वो पता होना चाहिए क्या है। तो आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अगर आते होंगे, तो आप मोस्टली इंटरव्यूज़ में आंसर कर पाओगे। हाँ, शॉर्टलिस्ट हो पाओगे, नहीं हो पाओगे, वो ऑब्वियसली यार, जावा डेवलपर है तो जावा होना चाहिए रिज़्यूमे में। अब वो एंड नहीं है। नहीं हो पा रहे हो, मर्न स्टैक वालों का एक रिज़्यूमे अलग बनाओ, जावा वाले का एक अलग बनाओ, क्योंकि अगर इतना मुश्किल आ रहा है तो। तो खेलना पड़ेगा, बट मुझे लगता है अगर आप मर्न स्टैक अच्छे से कर लेते हो, एक इनफ लेवल का प्रोजेक्ट बना लेते हो, तो यू आर ऑलमोस्ट रेडी। जावा के लिए करना है, 30-40 दिन है आपके पास, जावा में बैकएंड भी कन्वर्ट करके रख लो। जहाँ जावा आए वो अप्लाई कर देना, जहाँ नोड.जेएस हो वहाँ उससे अप्लाई कर देना। दिस इज़ मोर देन इनफ। कहीं न कहीं जॉब मुझे लगता है लग जाएगी अगर अच्छे से काम करा है। बाकी एंगुलर, फ्लटर है तो यार, अब जब तक हायरिंग नहीं हो रही, रिएक्ट के बाद एंगुलर थोड़ा-सा सीख लो, अगर तुम्हें लग रहा है कहीं की जॉब ज़्यादा है। टाइम ही लगेगा, अगर रिएक्ट अच्छे से आता है तो फ्लटर भी आ जाएगा 30-40 दिनों में। बट ट्राई करो उन्हीं में हायर हो जाओ, नहीं हो रहे तो यार साइड बाय साइड अपस्किलिंग करके उनको सीख लो। बट मुझे लगता है इनसे अगर हम गॉट कवर करते हैं तो मोस्टली कवर हो जाता है, क्योंकि एंड नहीं है। गॉट इट। राइट। बैक मेरे मैं आई टोटली अलाइन विद दिस फैक्ट। इसमें बस एक पॉइंट मुझे जो एक्स्ट्रा लगता है वो ये है कि जिन लोगों ने थोड़ा जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा कोड लिखा होता है, मतलब ऐसे प्लेन जेएस में, हाँ, जहाँ पे कुछ क्लासेस नहीं बना रहे वो लोग, कोई इंटरफेस कुछ नहीं बनाते, वो जब जावा में आते हैं तो थोड़ा ओवरवेलमिंग तो अच्छा, होता हाँ, है। श्योर। हर चीज़ का मतलब हर चीज़ का इंटरव्यू, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिंक्डइन गया था, तो तब तक मैं जावा वैसे जानता था कि मतलब डीएसए कर दूँगा जावा में, कुछ भी हाँ, डीएसए है राइट, वो ओपन कर राइट। सकते हैं। बट डेव में नहीं देखी थी, तो लिंक्डइन स्प्रिंग। पहुँच के सारे बैकएंड के कोड बेसेस में हर क्लास का एक इंटरफेस एग्ज़िस्ट करता था। हुँ, तो मेरे को तब ये बात ही नहीं समझ में आती थी कि मतलब ये इंटरफेस है ही क्यों? मतलब अगर तुम इंटरफेस ना बनाते, तो क्या होता? तो वो चीज़ सीखने में मतलब उस चीज़ को मैंने सबसे पहले श्योर। उसी चीज़ को रिज़ॉल्व करा पहले हफ्ते में, कि भई ये सीख लूँ कि भई ये टाइप्स कैसे चल रही हैं यहाँ पे। बट मैंने एक चीज़ और मतलब जनरल भी नोटिस करी है, जो लोग जावास्क्रिप्ट या पाइथन बैकग्राउंड से आते हैं और जावा में उनको थोड़ा बहुत फेंका जाए, तो हर चीज़ का टाइप डिफाइन करना, हाँ, हर जो इनबिल्ट लाइब्रेरीज़ हैं, उनके अपने ही क्रेज़ी टाइप्स होते हैं, वो निकाल के लाना, वो थोड़ा उनको थोड़ा फ्रिक्शन देता है। श्योर, आई श्योर, बिलीव। तो अगर हल्का-फुल्का कभी कॉलेज में एक्सपोज़र लेने का मन हो, तो जावा में ले लेना चाहिए। मतलब श्योर, मेरे को ऐसा लगता है श्योर, फेयर, कि हल्का-फुल्का दिस शुड हेल्प मोस्ट ऑफ श्योर, द पीपल। तो फेयर। आप लाइक व्हाट डू यू गाइज़ यूज़ एट प्रोपियस? प्लेन जेएस लिखते हो आप लोग या यू यूज़ टाइपस्क्रिप्ट फॉर मेकिंग श्योर कि यू हैव टाइप सेट नहीं, अभी तक तो थिंग्स अप? जावास्क्रिप्ट ही है सब में, टाइपस्क्रिप्ट नहीं यू है। यू यूज़ हाँ, गॉट इट, रिएक्ट है, नेक्स्ट गॉट जेएस इट। है, सब में जावास्क्रिप्ट ही है। मेक सेंस, मेक सेंस। लिंक्डइन में भी जो फ्रंट एंड था, इट वाज़ ऑल इन मतलब मेरी सर्विस जो थी, इट वाज़ ऑल इन प्लेन जेएस। अच्छा। बट आजकल काफ़ी लोग वो पूछ रहे होते हैं कि मतलब टाइपस्क्रिप्ट पढ़ें, ना पढ़ें, हाँ, शुड बी लर्निंग टाइपस्क्रिप्ट। तो मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए, हुँ, तो श्योर, बाकी टेक स्टैक्स में भी एक्सप्लोर करना आसान होगा। गॉट इट। एक एक लास्ट चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा, वो ये है कि लॉट ऑफ पीपल आस्क कि डेवऑप्स वगैरह की भी मतलब दे सी अपॉर्च्युनिटीज़,
बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब उन्हें अभी ये डेव वाला पार्टी में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को लगता है कि सुई इंटरव्यूज में डीएस से थोड़ा पूछा जाता है, डेवऑप्स में शायद थोड़ा कम पूछा जाता है, दे हैव दिस सॉफ्ट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दैट। आपका क्या पॉइंट है? मतलब इज डेवऑप्स हैविंग मतलब गुड इनफ अपॉर्चुनिटीज एंड लाइक what should one do? मतलब if they have interest in DevOps, should you do DevOps or try for both? मतलब क्या ओपिनियन आपका रिगार्डिंग द DevOps opportunities nowadays? श्योर। सो अगेन बेसिकली देखो, डेवऑप्स में ना थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म कर रखी है लोगों ने। कुछ कुछ ज़्यादा कुछ ख़ास होता नहीं है और डिमांड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ना सब लोग एआई सिस्टम में आ रहे हैं, वो स्केलेबिलिटी बढ़ गई है और वहाँ सर्वर कॉस्ट बचानी होती है, वहाँ लोग बंदे लगाने हैं, मतलब बंदियाँ-बंदियाँ लगानी है। तो बेसिकली वहाँ पर अब डेवऑप्स में आपको बैकएंड की नॉलेज थोड़ी-सी हो ना, तो आप अच्छे अच्छे डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हो। एडब्ल्यूएस की नॉलेज चाहिए। अब यार तुम अपनी वेबसाइट बनाई, राइट? कर लो ना उसको एडब्ल्यूएस पे डिप्लॉय उसका बैकएंड, एक बारी सीखो, उसमें घुसो, इतना मुश्किल नहीं होता है। वो लोग उसमें जाना नहीं चाहते और ये इन नॉट ओनली फ्रेशर्स, जो 1 साल एक्सपीरियंस भी होता है ना, वो भी डरते हैं, "अरे यार! एडब्ल्यूएस कौन जाएगा? वहाँ क्या होता है? टर्मिनल क्या आ जाता है?" कुछ नहीं है। अगर सिंपल से जाओगे, डिप्लॉयमेंट करोगे, सर्वर सँभालोगे, फिर अपने आप प्रॉब्लम्स आएँगी। यार ये एनजिनिक्स नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा है। सीखो, गूगल करो, सब लोग गूगल कर कर के ही कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत सर्वर सँभाल लो, लोड बैलेंसर लगाना सीख लो, बहुत वो नॉलेज। बाकी तो तुम एक्सपीरियंस से ही सीखोगे, किसी कंपनी में जाओगे, वहीं जाके सीखोगे और इतनी नॉलेज आनी चाहिए। तो तुमने कोई बैकएंड का प्रोजेक्ट बनाया है, उसको थोड़ा-सा डिप्लॉय करो एडब्ल्यूएस पे, लोड बैलेंसर वगैरह अगर लगाना सीख लो। कुछ नहीं, बस वो यूट्यूब पे वीडियो देखो, लगाते रहो और पीछे समझो कि क्या चल रहा है। एनजिनिक्स कैसे सेटअप करा, इतना भी आता है तुम्हें, सो यू आर गुड इनफ। क्या सीखना चाहिए? टाइम है तो सीख लो यार। मेरे ख्याल से तो 15-20 दिन का काम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सो गॉट इट। एडब्ल्यूएस या एज़्योर या जीसीपी कोई भी एक पकड़ के कर लो, क्योंकि एक में कर लिया तो दूसरे में ये सब लोग गूगल करके ही करते हैं। आज कोई फिर तो मेरे सेम को ही होता है, मतलब हाँ। सर्विसेज़ तो सबकी सेम है, आज कोई मेरे को नाम बिठा दे तो चेंज्ड है। मैं भी एडब्ल्यूएस पे गूगल करके ही करूँगा मतलब कोई नया नहीं है। तो वो तो याद तो रहता नहीं है ना लोगों को, तो वो तो सर्वर सेटअप सब कुछ डोमेन-वोमेन सेटअप करना ही पड़ेगा और एक बारी कर लोगे, कोई अभी किसी के लिए काम तो कर नहीं रहे हो, खुद ही सीखोगे और जाके अपने लिए कर लोगे तो वहाँ जाके और अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि गॉट इट। सो ये देयर इज़ अ चीज़ें टर्म फॉर लाइक हाँ, देयर इज़ अ टर्म डेवऑप्स फॉर सुई कि मतलब उतना हाँ, डेवऑप्स तुम्हें आ जाए, जो तुम बस, सुई पर्सपेक्टिव वाले काम में कर सको। एक होता है कि डेडिकेटेड डेवऑप्स इंजीनियर का एक अलग ही रोल है, जो कई-कई कंपनीज़ में एसआरई रोल पे भी होते हैं। राइट, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर के रोल पे होते हैं। उस रोल के लेवल तक अगर तुम्हें नहीं भी पढ़ना है, तो यू लर्न डेवऑप्स फॉर सुई कि याह, मतलब एक EC2 इंस्टेंस कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे हॉरिजॉन्टल स्केल करना है, कुछ डेटाबेसेस इंटीग्रेट करने आ जाए। दैट शुड बी समथिंग दैट वन कैन ऐड। कि इतना पार्ट एक बारी खुद से करके देख लो। और जैसे आपने कहा बस, कि ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बैकएंड इंजीनियर बढ़िया हो तो थोड़ा समझना आसान होता है बस। कि किस तरीके से डिप्लॉयमेंट्स वगैरह चल रही हैं। तो दैट मेक्स सेंस। Cool. I believe that we touch base upon a lot of things. I believe कि जो भी लोग देख रहे होंगे, they must be getting some context on what to do, how to prepare. I would say कि go check out Pro Peers. पारिक सर ने कुछ क्रेजी नाइस रोड मैप्स और काफ़ी इंटरेस्टिंग शीट्स डाली हैं। मैंने देखी थी आपकी वो एक्सेल शीट जहाँ पे पीपल कैन एक्चुअली कम अप एंड लाइक श्योर, manage their whole preparation all together. So that was really nice. So I would recommend people to do check it out. I'll maybe try to put all the links in the description and check out Parik sir channel as well. He's trying to put some nice content with crazy thumbnails. तो एक बारी जाओ चेक आउट करो सही है। and let's wrap today's session here. And first of all, like thanks Parik for coming up and taking out time. And थैंक let's यू। try to meet up soon याह, in person actually. Yeah. याह, थैंक यू संकेत, इट वाज़ रियली अमेजिंग। थैंक यू गाइस। Cool. Cool. Yep. Yep. That being said, let's wrap today's session here, guys. We'll meet soon in the next set of videos. Till then, take care. Bye bye. I'm Sanket Singh, signing off.